Assalamu alaikum students, hope you are fine. Class 2, it's all about your fifth slot, unit number 8, measurement, countdown page number 123 to 128. In the fourth slot, we have already learnt about the measurement of weight in grams and kilograms. Now we will learn how we will add kg and grams. Kg means kilogram. In this example, you can see the rice are in the kg, mean to say kilogram, while nuts in grams. Remember that kilograms always added in kilograms and grams always added into grams. We cannot add kilogram into grams. You can see a shopkeeper sold rice on Monday, that is equal to 11 kg. He sold rice on Tuesday, that is equal to 14 kg, and he sold rice on Wednesday, that is equal to 26 kg. And we have to add all together how many kgs he sold altogether. First of all, we will start addition from the one side. We will add 1 plus 4, it will be 5. 5 plus 6, that is equal to 11. We will write 1 below the ones column, and we will take 1 carry and the tens place. Now we will add 1 plus 1, that is equal to 2. 2 plus 2 is equal to 4, and we will add 1 carry. In 4 we get 5. It means he sold in 3 days 51 kilogram rice. As you can see in the right side, there are nuts. He sold nuts on Monday 500 grams, on Tuesday 120 grams, and on Wednesday 260 grams. Now we will add from the ones place. When we add 0 into 0, we get 0. And then the tens place, we will add 6 plus 2, that is equal to 8. Now come on the hundred place. 5 plus 1 is equal to 6, and 6 plus 2 is equal to 8, that is equal to 880 grams. Make sure आपने ग्राम्स को ग्राम्स में ही ऐड करना है, और उसका जो यूनिट है, दैट इज मेजरमेंट यूनिट ग्राम्स, वो आपने एज इट इज़ लिखना है. अगर आप ग्राम्स ऐड करें तो उसका आंसर में यूनिट भी ग्राम आएगा, और अगर आप केजीज में ऐड कर रहे हैं तो उसका यूनिट भी किस में आएगा, केजी में आएगा. एज यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Tanveer buys 500 gram of peanut, 100 gram of coffee and the 50 gram of cashew nuts. What is the total weight? अब वो पूछ रहा है कि उसने इतने ग्राम्स जो है ड्राई फ्रूट्स खरीदे हैं और उसका टोटल वेट क्या होगा. तो सेम एज इन द अदर साइड यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द peanut, weight of peanut is equal to 500 gram. Then we will write the weight of coffee, that is equal to 100 gram. Then we will write the weight of cashew nut, that is equal to 50 gram. We will add from the ones place. When we add 0, that is equal to 0. 0 plus 0 is equal to 0. Now we will add 0, 0 and 5, we get 5. In the next 100 place, we will add 5 plus 1, that is equal to 6. Altogether weight is equal to 650 grams. Now students, you are to solve all these questions on your notebook. Make sure you are to write statement on your solution as per given in example. All these sums are addition sums. You have to solve on your notebook. The next one topic is subtraction. Same as if we can't add kilograms into grams, we cannot subtract kilogram into grams. You can see there is a grocery store. He has a stock of 88 kilograms, and he sold 29 kilograms, and he asking what is remaining stock, grocery stock is in your in the store. You will write there is a statement had last week, मीन टू से कि उसके पास ग्रोसरी स्टोर में जो उसके पास स्टॉक था वो कितना था 88 किलोग्राम्स, एंड ही सोल्ड सिंस देन 29 किलोग्राम. और ही इज़ आस्किंग कि उसके पास जो रिमेनिंग स्टॉक है वो कितना बचा हुआ है. रिमेन का मतलब होता है कि मतलब जो चीज़ बच गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 88 kilograms and 29 kilograms. When we subtract, we cannot subtract 8 from 9, so we will take carry from 8. When we give 1 to one's place, it will be 18, so we will subtract 18 minus 9, that is equal to 9. Now 7 minus 2 is equal to 5. The answer is 59 kilograms. Mean to say उसके पास जो स्टॉक बच चुका है वो कितना है, 59 किलोग्राम. There is one more example. A bar of chocolate weight is 100 grams. Daud eat 40 grams. How much is left? जब भी लेफ्ट की बात होगी तो इट्स मीन्स दिस इज अ सब्ट्रैक्शन सम, और जब भी ऑल टुगेदर की बात होगी इट्स मीन दिस इज एडिशन सम. अब चॉकलेट का जो वेट है वो क्या है, 100 ग्राम, और उसने दाऊद ने कितनी खा चुकी है, मतलब दाऊद ने जो ईट किया है वो है 40 ग्राम्स. अब वो पूछ रहा है कि बताएं कि उसके पास बाकी चॉकलेट कितनी बची है. तो हमारे पास जो बिगर वैल्यू है वो विल राइट 100 ग्राम in the top and 40 gram in the below of the 100.
So we will subtract 0 from 0, that is equal to 0, and we cannot subtract 0 from 4. We will take carry from 1, that is equal to 10. Now 10 minus 4 is equal to 6. The answer is 60 gram. As I told you in the examples, how we will solve the subtraction sums, how we will subtract kg from kg and grams from grams. Same as you will do all these sums on your notebook. Make sure, don't forget to make the statement and do rough work also. All these questions are subtraction sums. In the next topic you can see these questions are entirely different from statement sums. वहाँ पर आपने देखा होगा सिर्फ अगर हमारे पास या तो मेजरमेंट जो है ये किलोग्राम्स में आ रही थी या ग्राम्स में आ रही थी. इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किलोग्राम और ग्राम ऑल टुगेदर है. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. अब एडिशन सम्स में हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन सम में सब्ट्रैक्शन करेंगे. अब जब किलोग्राम्स और ग्राम्स इकट्ठे आ जाएं तो मैंने आप लोगों को पहले ही चीज़ क्लियर की है कि हमेशा केजी में ऐड होगा और ग्राम्स में ही ऐड होंगे. और सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन के लिए भी है. तो अगर हम एडिशन की बात करें तो जब ऐड करेंगे केजी को केजी में और ग्राम्स को ग्राम्स में, तो और जब क्वेश्चन इकट्ठा आया हो कि केजीज और ग्राम्स आपके पास इकट्ठे मौजूद हों तो हम लोग हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राम से. वी विल स्टार्ट एडिशन फ्रॉम द राइट साइड. Let's see, when we add 0 plus 5, that is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7. 4 plus 8 is equal to 12. अब जैसे कि यहाँ पर 12 आ गया और नेक्स्ट वैल्यू क्या स्टार्ट हो रही है किलोग्राम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्लॉट 4, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अगर आपके पास ग्राम्स जो है वो 1000 से इंक्रीज कर जाए, 1000 से क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो हम उसका जो 1000 है 1000 वैल्यू विल गिव टू इन किलोग्राम्स. हम उसको एज अ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे किसमें, किलोग्राम्स में, और जस्ट हंड्रेड्स वैल्यूज हम लिखेंगे किसमें, ग्राम्स में. तो हमारे पास ग्राम्स में क्या आ गया 275 ग्राम्स एंड वी विल टेक कैरी ऑन किलोग्राम्स. नाउ 2 plus 1 is equal to 3 and 2 plus 2 is equal to 4. So answer is 43 grams, 43 grams, kilograms and 275 grams. Same as in subtraction sum, we will start from the right side, subtraction from grams. We cannot subtract 0 from 2, so we will take carry from 2, that 0 will make 10. 10 minus 2 is equal to 8 and here is 1 is remainder, so we cannot subtract 1 from 8. We will take again carry from 9, that will is equal to 11. 11 minus 8 is equal to 3 and yes, we can subtract 8 from 7, so that is equal to 1. अब 138 grams and now we will subtract 76 kg from 51 kg. 51 kg को माइनस करेंगे 76 kg में से, तो 6 minus 1 that is equal to 5. 7 minus 5 is equal to 2. The answer is 25 kg 138 grams. I'm repeating again, जब भी आपने addition या subtract करना है we will start from the ग्राम कॉलम्स. हम लोगों ने हमेशा स्मॉल जो मेजरमेंट है वहाँ से ही एडिशन स्टार्ट करनी है और वहीं से क्या स्टार्ट करनी है, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है. Thank you. Now come on page number 125. Keeping in your view examples and solve all these sums on your countdown. In the fourth slot, we have already learned about capacity. 1 liter is equal to 1000 milliliters. 1 liter is equal to 1000 milliliters. Here are some different objects. यू कैन सी मिल्क यूज टू दिस मग टू मेजर मिल्क. अगर हमारे पास एक मग है, अब जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्ट पे कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है. फॉर एग्जांपल एक मग है, उस मग में कितनी कैपेसिटी आ सकती है. अगर आप उसमें दूध डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो मतलब उसमें कितनी आ सकती है. अगर वो कप बहुत बड़ा है 1 लीटर के साइज़ का, तो मतलब उसमें लीटर्स में चीज़ आ सकती है. तो उसमें जो भी कैपेसिटी होगी तो उसकी जो मेजरमेंट होगी दैट इज़ इक्वल टू लीटर. अब यहाँ पर मग शो किया जा रहा है. मिल्क मैन यूज दिस मग टू मेजर मिल्क. मिल्क को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करता है, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर. अब जो कंटेनर यूज होते हैं पेट्रोल को मेजर करने के लिए, आपने अक्सर पेट्रोल शॉप्स पे देखा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर. लुक नेक्स्ट वन इज बॉटल इन द शॉप. हम जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं डिफरेंट उसमें होती हैं, हाफ लीटर्स में भी आपके पास होती है, लीटर्स में भी होती है. वो डिपेंड करता है आपके कंटेनर पे कि आपके कंटेनर का साइज़ कितना है, कि उसमें आपके पास कितनी कैपेसिटी आ सकती है. सेम एज यू एंजॉय ड्रिंक फ्रॉम दिस. आप जो जूस पीते हैं दैट इज़ इक्वल टू मिली लीटर. वो लीटर्स में नहीं होता. अक्सर पैकेट्स आपके बड़े होते हैं वो लीटर्स में होते हैं. जो बहुत स्मॉल पैकेट होते हैं वो किस में होते हैं, मिली लीटर्स में होते हैं. सेम एज जैसे कि आपकी इंक पोट है, इंक पोट मिली लीटर्स में होती है.
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं जिनको हम मेजर लीटर्स में और मिली लीटर्स में करते हैं। ऑन पेज नंबर 127 यू कैन सी उसने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है लीटर को और मिली लीटर को, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कंटेनर्स हैं जो हम लीटर में मेजर करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिली लीटर में मेजर करते हैं। बिग अमाउंट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो जैसे कि हमारी जो घर में हम टैंकीज यूज़ करते हैं, जो पानी वाटर टैंक होते हैं, दैट इज इक्वल टू लीटर, वो लीटर्स में होता है, कभी भी मिली लीटर्स में नहीं होता। कुकिंग ऑयल्स इन कैन्स और वाटर वो भी लीटर्स में होता है। पेट्रोल फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल, जब हम किसी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाते हैं वो भी किस में होता है, लीटर्स में होता है। ये हमारी डेली रूटीन की क्या है, एग्जांपल्स हैं जो हम लीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर हम मिली लीटर्स की बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर एग्जांपल अ स्पून, अ कप और ग्लास, टम्बलर, सिरप, टॉनिक्स, हनी वगैरह, इस तरह की चीज़ें छोटी, जैसे कि आप जूस भी पीते हैं, आपके घर में जो मेडिसिन आती है, वो सिरप जो आप यूज़ करते हैं वो मिली लीटर में होता है। और शैम्पू, आपके पास शैम्पू की बोतल मिली लीटर में होती है। ये तमाम चीज़ें आप किस चीज़ में मेजर करते हैं, मिली लीटर में मेजर करते हैं। ऑन काउंटडाउन पेज नंबर 127 यहाँ पर आपको बताया गया है कुछ प्लेसेस दी गई हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें आपने मेंशन करना है कि जो क्वेश्चन है वो मिलीलीटर में है कि लीटर में है, कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उस क्वांटिटी की कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल द इंक इन योर पेन, आपके जो इंक पेन होता है उसमें जो इंक फिल की जाती है वो किस में होती है, मिलीलीटर में। द वाटर इन अ फिश टैंक, वो लीटर में होता है। वाटर टैंक जो फिश का होता है, एक्वेरियम जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, तो इसलिए उसमें जो वाटर आता है वो लीटर्स में आता है। द मिल्क कलेक्टेड बाय अ मिल्क मैन, जब हम किसी मिल्क मैन से दूध लेते हैं तो वो भी किस में होता है, लीटर्स में। मिल्क इन अ कप, अब एक छोटा सा कप है उसमें अगर मिल्क डाला जाए तो वो किस में होगा, मिलीलीटर में। पेट्रोल फॉर अ स्कूटर, आप जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि गाड़ी में फ्यूल फिल कराना हो, बाइक मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल फिल करवा रहे हो, ये तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें किस में मेजर होंगी, लीटर में। कफ सिरप, मतलब जो घर में खांसी का सिरप आता है, मेडिसिन आती है, वो मिलीलीटर में होती है। स्मॉल पैक ऑफ मैंगो ड्रिंक, आप जो मैंगो जूस पीते हो वो किस में होता है, स्मॉल पैक होता है, दैट इज इक्वल टू मिलीलीटर। अ स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, एक चम्मच में जो मेडिसिन आप लेते हो, जैसे कि आप सिरप पी रहे हो, मेडिसिन उसमें डाल रहे हो, तो वो भी किस में होगी, मिलीलीटर में। अ लार्ज बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल, जो घर में कुकिंग ऑयल की बॉटल्स यूज़ की जाती हैं, दैट इज इक्वल टू लीटर्स। अ स्मॉल बॉटल ऑफ शैम्पू, घर में जो शैम्पू की बॉटल यूज़ की जाती है वो किस में मेजर की जाती है, मिलीलीटर में। On the last of page number 127, you can see we have already learned about that 1 liter is equal to 1000 milliliters. 1 लीटर में हमेशा कितने मिलीलीटर्स होते हैं, thousands milliliters होते हैं। In this question you have to convert liter into milliliters. हम लोगों ने लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स में। तो so in the first question you can see they how many milliliters in 3 liters. 3 liters is mentioned and we will place 1000 in replacement of liters. So we will multiply 1000 with 3, दैट इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। मीन टू से अगर 3 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 3000। सेम एज यू विल डू बी एंड सी पार्ट बाय योरसेल्फ, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 6 with 1000 and 4 with 1000 and we get 6000 milliliter and 4000 milliliter. I hope your concept of addition of kilograms and grams and subtraction of kilogram with grams and the concept of capacity in liters and milliliters have been clear. So say Alhamdulillah, Allah Hafiz.